Okay, then proceed with next equation. तो मतलब आप सभी लोगों को कार्बन एमाइन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों नाइट्रस एसिड क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा। डियर स्टूडेंट, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? If yes, then write the formula of nitric acid in the chat box. Right? If yes, you know the formula of nitric acid, then write the formula of nitric acid. Now I am going to discuss what is nitrous acid. तो nitrous acid क्या होता है बच्चों? nitrous acid का formula होता है HNO2. HNO2 is the formula of nitrous acid. And how this nitrous acid is formed? When sodium nitrite is NaNO2 react with HCl, then we get HNO2. I think the point is clear. And water सॉरी NaCl रिमूव। NaCl यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास में क्या बनता है? HNO2, एंड HNO2 इज ए नाइट्रस एसिड। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो हाउ प्राइमरी एमाइन एंड primary aromatic amine react with nitrous acid? It is again very much important chemical reactions. And when primary amine react with nitrous acid, primary aliphatic amine. Now I am talking for primary aliphatic amine. So what are the primary aliphatic amine? The primary aliphatic amines are RNS2. RNS2 is the primary aliphatic amine. Okay, dear student, react with HNO2. So what is HNO2? HNO2 is nothing but nitrous acid. And this nitrous acid formed when NaNO2 sodium nitrite react with HCl gas. Okay, so we get HNO2. The primary aliphatic amine, this is the 1 degree amine, dear student. This is the 1 degree amine, and this is the nitrous acid react with each other and form a aliphatic diazonium chloride. And the aliphatic diazonium chloride is RN2Cl, and it is very less stable. Stability of this compound is very less. So what happen? ये जो है ना बच्चों, ये नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगी। अब मैं इसका क्या करवाऊंगा? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अपॉन हाइड्रोलाइसिस द नाइट्रोजन विल एस्केप, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। और जो ये Cl है ना बच्चों, ये Cl किस फॉर्म में बाहर निकले? ये Cl जो है वो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? ये जो Cl है बच्चों, ये HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो R है ना, ये किससे जुड़ जाएगा बच्चों? OH से जुड़ जाएगा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे ये RNS2 N2Cl, RN2Cl is aliphatic diazonium chloride. I think the point is clear. React with HOH. HOH means water. यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये HCl ये बाहर निकलेगा, N2 gas remove, and finally we get ROH. What is ROH? ROH is the alcohol. ROH is the alcohol. So whenever primary amine, primary means primary aliphatic amine react with nitrous acid, we get a compound, and it is the unstable compound, and the name of this compound is aliphatic diazonium chloride. Aliphatic diazonium chloride, and it is unstable, or upon hydrolysis it gives alcohol, and again with nitrogen gas. Dear student, this reaction is very important in the qualitative evolution of this reaction is very important for to find the estimation of amino acids and protein. We know the amino acids and protein. The main component in the amino acids and protein is nitrogen gas. नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के अंदर बच्चों वो जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। अब किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स के अंदर कितनी नाइट्रोजन है उसको हम किस टाइप से पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड। मतलब उस प्रोटीन और एमिनो एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है बच्चों? हमें नाइट्रस एसिड से करवानी है। नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो उसका क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करवाएंगे बच्चों? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हमारे पास में क्या बनेगी? नाइट्रोजन गैस मिलेगी।
और नाइट्रोजन गैस हमें कितनी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे, हम उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो एमिनो एसिड जो हमें दिया हुआ है या प्रोटीन जो हमें दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कौन सा है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये जो एलिफेटिक एमाइंस है ना बच्चों, सॉरी एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, ये नाइट्रस एसिड से कुछ अलग ही टाइप की रिएक्शन शो करती है। हमने देखा है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन इफ रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड दे फॉर्म ए लेस स्टेबल कंपाउंड डायजोनियम क्लोराइड, एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड, एंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड break into nitrogen gas and फाइनली फॉर्म एल्कोहल। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन क्या करेगी बच्चों, एल्कोहल फॉर्म करेगी, साथ में नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट करती है किससे बच्चों, नाइट्रस एसिड से, तो फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रस एसिड इज HNO2। HNO2 HNO2 is the formula of nitrous acid, HNO2, and this is the amine, this is amine, and this is the this is the this is aniline, this is the aniline, this is the amine, this is aromatic amine, and the name of this compound is aniline, this is aniline, okay. And this aniline when react with nitrous acid, a intermediate compound and very important compound is formed, that is benzene diazonium chloride, this is the benzene diazonium chloride, और NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये जो है ना बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है, इससे हम अलग अलग टाइप के वेराइटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। उसी टाइप से अगर हमें एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का मैं बता देता हूँ बच्चों किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बहुत सिंपल। ओके okay, so benzene diazonium is a very useful component, this all I have discussed. Now this is the primary aliphatic primary aromatic amine react with nitrous acid, the form benzene diazonium chloride is very important compound, organic compound, and by using this compound we can form variety of organic compound by using this benzene diazonium chloride. I think the point is clear. Now secondary and tertiary aromatic amine react differently with the nitrous acid, and this is not in our syllabus. Now proceed with distinction of primary, secondary and tertiary amine with the help of Hinzberg reagent, Hinzberg test. So what is Hinzberg test? Very important question for point of view, for exam point of view. Distinction of primary, secondary and tertiary amine, and we can differentiate between primary, secondary and tertiary amine with the help of Hinzberg test. And what is this test? And in this test we use Hinzberg Hinzberg reagent, and the Hinzberg reagent is benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl. C6H5SO2Cl is the Hinzberg reagent, and this is the formula, and this is the structure of Hinzberg reagent. This is the chemical SO2Cl. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन को कैसे हम पता करें विद द हेल्प ऑफ हिंजबर्ग रिएजेंट। क्या करेंगे हम, प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन किससे कराएंगे, हिंजबर्ग रिएजेंट से। तो एक हमें इंटरमीडिएट बनेगा, वो उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाते हैं, मतलब एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हम प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन बच्चों हिंजबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड।
C6H5SO2Cl. It is a Hinsberg reagent. I think the point is clear. Whenever we react primary amine with Hinsberg reagent, तो क्या होगा बच्चों, एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। और वो व्हाइट प्रिसिपिटेट अगर हम NaOH के सॉल्यूशन के अंदर उसको डिसोल्व करते हैं, तो वो अगर डिसोल्व हो जाता है तो गिवन amine will be primary amine. I think the point is clear. If we react secondary amine, तो सेकेंडरी एमाइन जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो भी एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो भी व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। ओके, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, और उस व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट को अगर हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो वो NaOH के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट क्लियर है। इसी टाइप से अगर हम टर्सरी एमाइन की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, हिंसबर्ग रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल है, वो हो गया बच्चों। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे प्राइमरी एमाइन, ये जो प्राइमरी एमाइन, ये मैंने लिखा प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन में लिखा RNHH, दिस इज द प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ, मुझे किससे करवानी है, हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट इज C6H5SO2Cl, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होगा बच्चों, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, RNHSO2C6H5. This is the N-alkyl benzene sulfonyl chloride. N-alkyl benzene sulfonyl chloride. The name of this compound is N-alkyl benzene sulfonyl chloride. Again, this is the white color precipitate. This is the white colored precipitate. I think the point is clear. अभी मैंने क्या लिया है बच्चों, 1 डिग्री एमाइन लिया है, 1 डिग्री एमाइन। Again, this compound white color precipitate react with this white color precipitate react with NaOH. ये अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या होगा, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो कंपाउंड बनता है RNSO2C6H5 Na. दिस इज द कंपाउंड, ये कंपाउंड हमें मिलता है। तो आई थिंक द केमिकल रिएक्शंस इज क्लियर। केमिकल रिएक्शंस आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन है बच्चों हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट करने का तरीका, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी एमाइन जब इससे रिएक्ट करती है हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो ये कंपाउंड बनेगा N-alkyl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये अगर NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये सोल्यूबल कंपाउंड बना है। अब मैं लेता हूँ सेकेंडरी एमाइन। दिस इज द सेकेंडरी एमाइन, this is the secondary amine react with benzene sulfonyl chloride. This is the benzene sulfonyl chloride. ये है secondary amine. Secondary amine means this is the 2 degree amine. 2 degree amine react with benzene sulfonyl chloride. HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे क्या बनेगी हमारे पास में, एक इंटरमीडिएट बनेगा RNSO2C6H5. This is the N-dialkyl benzene sulfonyl chloride. N dialkyl benzene sulfonyl chloride. I think the point is clear. जब मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ किससे, NaOH से, ये भी व्हाइट पीपीटी है बच्चों, ये भी व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट कलर का ये पीपीटी है। जब इसकी मैं NaOH से रिएक्शन करवाता हूँ तो ये क्या होगा बच्चों, इनसोल्यूबल। क्या होगा ये, इनसोल्यूबल। ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल कंपाउंड बना है, और ये जो बनाना है बच्चों ये इनसोल्यूबल है। ये सोल्यूबल कंपाउंड है और ये इनसोल्यूबल कंपाउंड है। अब मैं बात करता हूँ टर्सरी एमाइन की। टर्सरी एमाइन है R, इसकी रिएक्शन करवाना है ClSO2C6H5 से, क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। Why no reaction? Because tertiary amine does not have any
हाइड्रोजन, इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंजबर्ग रिएजेंट। तो ये सारा अभी हमने बता दिया है। नेक्स्ट हम बट ये भी हमने पढ़ा था, हिंजबर्ग रिएजेंट्स मेथड इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन बट आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द दीज एमाइंस प्रेजेंट इन द मिक्सर। अगर मिक्सर के अंदर एमाइंस मौजूद है ना, एक मिक्सर दे दिया जिसके अंदर प्राइमरी एमाइन भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी एमाइन भी है, तीनों का मिक्सर हमें दे दिया, इन तीनों का मिक्सर दे दिया तो भी हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी एमाइन होगी वो NaOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी और निकल जाएगी, सेकेंडरी एमाइन होगी वो NaOH के व्हाइट पीपीटी बनाएगी लेकिन NaOH के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, और जो टर्सरी एमाइन होगी वो हिंजबर्ग रिएजेंट से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। अब हम आजकल क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह हम क्या करते हैं, पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह हम क्या यूज करते हैं बच्चों, पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द फॉर्मूला फॉर पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट अभी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं ClSO2 C6H5CH3, इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया तो आज हमने जो पढ़ा है बच्चों वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हमने हिंजबर्ग रिएजेंट से हमने टेस्ट किया है, हिंजबर्ग रिएजेंट से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में उससे पहले हमने नाइट्रस एसिड से हमने रिएक्शंस करवाई थी, तो नाइट्रस एसिड को रिएक्शंस करवा के हमने ये पता किया कि जो प्राइमरी एमाइन है वो किस टाइप से रिएक्ट करती है, सेकेंडरी एमाइन किस टाइप से रिएक्ट करती है। तो प्राइमरी एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेती है बच्चों, एल्कोहल बना लेती है, जबकि एरोमेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेती है। तो ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखी है, साथ में हमने इसको स्ट्रक्चर बना के भी सीखा है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस, you can ask me in your you can use the chat message to write me the message। आप मुझे चैट बॉक्स में भी मैसेज भेज सकते हैं।